Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools, your online classes. Today we are going to discuss chapter 3, that is the rise of nationalism in India. In this chapter we will discuss about the experiments of Mahatma Gandhi. Students, as we know that during the war years the national movement had become more forceful as it spread to new areas. New social groups joined the movement and new modes of struggle against the British rule were developed. Between 1914 to 1920, the prices of food grains rose by 93%. Students, 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1918 में फिनिश हुआ था. This caused acute distress to the common people because British government increased the taxes, custom duties and introduced the income tax. According to 1921 census, nearly 12 to 13 million people died as a result of famines and epidemics. It was at this time that a new leader appeared on the Indian political scene. The new leader was none other than Mahatma Gandhi. Students, as we know that Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father's name was Mohandas Karamchand Gandhi and his mother's name was Putlibai. His spouse was Kasturba. Gandhiji has 4 children. He was shot dead on 30 January 1948 in Delhi at Birla House shortly after 5 p.m. on Friday when he was going in the prayer meeting. By profession, he was a great freedom fighter, lawyer, politician and writer. Now we will talk about experiments of Gandhiji. Gandhiji emerged as the undisputed leader of the Indian National Congress. After arriving in India in 1915, Gandhiji experimented with satyagraha at Champaran in Bihar and Kheda in Gujarat. Gandhiji heroic fight for the Indians in South Africa was well known. गांधी जी ने जितने भी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट्स किए थे वो पूरी तरह से उसमें सफल हुए थे. हिज नोबल मेथड ऑफ एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वाज नोन एज सत्याग्रह. सत्याग्रह एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सत्य का आग्रह, जो कि पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित होता है. Without being aggressive, a satyagrah could win the battle through non-violence. ये गांधी जी का मानना था. And in 1916, Gandhi ji travelled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against oppressive indigo planters. Indigo मतलब एक ब्लू जो है ब्लू कलर की इंक होती है या जिसको हम नील कहते हैं. In 1916, Gandhi ji supported the peasant in Kheda district in Gujarat who were suffering from shortage of food due to crop failure and advised them not to pay revenue till their demand of its remission was met. In 1918, Gandhiji went to Ahmedabad to organize a satyagrah movement amongst cotton mill workers. तो ये गांधी जी के जो है स्टार्टिंग के कुछ मूवमेंट्स थे जो सत्याग्रह थे और इनकी जो थीम थी वो सत्य पर आधारित थी, नॉन वायलेंस पर आधारित थी. ये किसी तरह की हिंसा जो है वो उस पर जो है ये विचार या उसको नहीं मानते थे. तो आगे हम बात करें, फर्स्ट जो मूवमेंट इनका था वो था चंपारण मूवमेंट. चंपारण मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने 1916 में किया था, जहां पर गांधी जी इंस्पायर्ड द इंडिगो फार्मर्स टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव प्लांटेशन सिस्टम. Under this system, the farmers were bound by law
to grow indigo on 3/20 of their land and sell it to the British planters at prices fixed by them. A commission of inquiry was to look into the issue. गांधी जी ने देखा कि जो है 1914 to 15 में जब दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद भी जो है इंडियन के प्रति जो उनका बिहेवियर था उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का बहिष्कार करना शुरू किया, जिससे उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला पहला सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, उस समय बिहार में फार्मर्स जो है इंडिगो यानी नील की खेती करते थे, जिसका यूज़ कपड़ों की रंगाई में किया जाता था। इंडिगो को यूरोपियन कंट्रीज़ खरीदती थी। इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें फार्मर्स को 3/20 पार्ट्स पर इंडिगो ग्रो करना पड़ता था और जो रेट थे वो भी फिक्स नहीं होते थे। फार्मर्स इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखे जाए तो उस समय आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ होने लगा था, जिससे इंडिगो की डिमांड कम हो गई। आफ्टर द जब गांधी जी आए तो उन्होंने इस पर जो है इसके लिए इंक्वायरी के लिए कमीशन बैठाया और डिमांड की कि जिसमें से वो डिमांड की कि इसको बंद किया जाए और उस कमीशन के वो खुद एक मेंबर थे। एट लास्ट उन्होंने फार्मर्स को टैक्स फ्री करवाया, इंडिगो की खेती को बंद करवाया और उन्होंने कहा कि अभी तक फार्मर से जितनी इलीगल वे में जितना पैसा फार्मर से लिया गया है उसे वापस किया जाए। और इससे जो है क्या है गांधी जी का जो ये मूवमेंट था वो सक्सेस हुआ और वो चंपारण यानी बिहार में जो है उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से फार्मर्स को जो है वो फ्रीडम दिलवाई टैक्सेस से और अब जो वहाँ के फार्मर्स थे वो फ्री होकर के जो है अपना वो करने लगे। इसके बाद इनका सेकंड मूवमेंट आया खेड़ा मूवमेंट, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। Similarly, he supported the cause of the peasants of Kheda who were not in position to pay the revenue due to famines and epidemics. तो खेड़ा मूवमेंट में भी सेम वही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी फार्मर्स जो है वो टैक्सेस को पे करने के लिए, रेवेन्यू को पे करने के लिए जो है कैपेबल नहीं थे। तो खेड़ा मूवमेंट में फार्मर्स की प्रॉब्लम सुनकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए वहाँ पर भी कहा, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से। यहाँ के फार्मर्स ने अंग्रेज़ों से लगान माफ़ करने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश जो है इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। कई फार्मर्स को जेल में भी बंद कर दिया गया था, लेकिन फार्मर्स की जो जिद थी, जो उनकी डिमांड थी, उसके आगे फार्मर्स जो है वो झुके नहीं। आखिरकार ब्रिटिशर्स को जो है फार्मर्स की डिमांड माननी पड़ी।